چونکہ ہم نے پہاڑی واز ہی شروع کیا ہوا ہے اور اسی پہاڑی واز میں سے ہی ہم سیکھیں گے، جانیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب، نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب، 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ ہم نے ابھی تک پہلی 13 آیات پر خدا کے کلام کو سیکھا ہے۔ آج ہم 14ویں آیت سے 16ویں آیت تک خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یہ مرقوم ہے: تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وہ پہاڑی واز ہے جو بڑا معروف واز ہے۔ پوری دنیا، نہ صرف مسیحی بلکہ غیر مسیحی بھی اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور اسے بڑی عزت احترام دیتے ہیں۔ گزشتہ ہم سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم زمین کے کیا ہو؟ نمک ہو۔ اور اب ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہو؟ دنیا کا نور ہو۔ دنیا کا کیا ہو؟ نور ہو۔ ہم اس کا سٹرکچر یا اس کا ڈھانچہ دیکھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ اگر ہم اس کی گرامر کی بات کریں، جو پہلا پیسج ہم نے 13ویں آیت میں پڑھا ہے یا 14ویں آیت میں، تو اس کی گرامر اس طرح سے ہے کہ اس میں ایک ڈیفینٹ آرٹیکل لگایا گیا ہے، نمک کے ساتھ اور نور کے ساتھ۔ اس کا اردو میں تو کوئی ترجمہ نہیں ہے، نہ کیا جاتا ہے، لفظ ہی نہیں ہے، لیکن انگلش زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈیفینٹ آرٹیکل کا۔ اس کو دا لگا دیا جاتا ہے، جس سے ایک چیز جو ہے اس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں ال لگا دیا جاتا ہے، ال کا مطلب بھی ڈیفینٹ آرٹیکل ہے یا اس چیز کو خاص بنا دیا جاتا ہے۔ انگلش زبان کا دا جو ہے یہ بھی ڈیفینٹ آرٹیکل کا ترجمہ ہے جو یونانی متن میں لگایا گیا ہے۔ اس سے ایک چیز کو خاص بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا اور کوئی ثانی اور کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ اپنی جو کوالٹی ہے، اپنا جو معیار ہے، اس میں اتنے اتم درجے پہ ہے کہ کوئی بھی اور اس جیسا نہیں ہے، کوئی بھی اور اس جیسا نہیں ہے۔ یعنی جو یہ ہے وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ بڑا یونیک قسم کا، بڑا انٹیک قسم کا، کہ اس جیسی چیز آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ آمین۔ یہاں اگر آپ اور اس کو اردو زبان کے دیگر الفاظ کے ساتھ ہیلپ لے کر اس کا ترجمہ کریں تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کا نور صرف اور صرف تم ہو۔ کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کا نور صرف اور صرف تم ہو، اور زمین کا نمک صرف اور صرف
तुम हो, कोई और नमक नहीं हो सकता, कोई और नूर नहीं हो सकता। आमीन। इसका मतलब यह है, चूंकि मैंने लास्ट टाइम जब इस पहाड़ी वाज की हम शुरू में तफसीर कर रहे थे तो हमने जाना था, सीखा था कि बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत सारे फकीह, फिरीसी, शरा के आलिम और इसी तरह से दीगर अक़वाम के लोग, खुदावंद यीशु मसीह के हवारी, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी इस जगह मौजूद हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की बात सुन रहे हैं। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली डिसाइपल्स के लिए हैं, शागिर्दों के लिए हैं। जैसे मुबारकबादियां सबके लिए नहीं है, वो किन के लिए हैं? शागिर्दों के लिए, डिसाइपल्स के लिए हैं। यीशु मसीह ने नमक होने का जिक्र किया, सब नमक नहीं है। कौन है? जो शागिर्द हैं, जो डिसाइपल्स हैं, जो क्लीसिया है, जो चर्च है, जो उसके बुलाए हुए हैं, उनके लिए बात की जा रही है। इसी तरह से नूर के लिए भी यही बात है कि सब नूर नहीं है। कौन है? शागिर्द, डिसाइपल्स, क्लीसिया, चर्च जो है, इनको कहा गया है कि सिर्फ दुनिया में तुम नूर हो, कोई और नूर नहीं है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। अब पहले हमने नमक के बारे में सीखा है, नमक जायका देता है। एक लिहाज से कह लें कि ये खामोश गवाही है, एक खामोश गवाही है जो हर ईमानदार दे रहा होता है। हमने सीखा कि नमक लोगों की पाकीज़गी, शिफा, फ्लेवर, जायके के लिए या उनको महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जायका लोग चखते हैं, नजर नहीं आता। क्या नजर आता है? फ्लेवर कभी नजर नहीं आता, लेकिन उसको टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट नूर जो है, इसका टेस्ट नहीं बल्कि ये नजर आता है, ये दिखाई देता है। ऐसा ही है, इसको टेस्ट नहीं किया जाता बल्कि ये नजर आता है। इसलिए याद रखें, पहले कहा गया है कि मैंने इसके स्ट्रक्चर से मुझे इतनी ब्लेसिंग और बरकत मिलती है कि पहले कहा गया कि तुम क्या हो? जमीन के नमक हो। यानी तुमने खामोश गवाही दुनिया में फैलानी है। तुमने अपने किरदार, अपने कैरेक्टर से, अपने बोलचाल से, अपनी जुबान से खुदा की ताजीम करनी है। तुम्हारी खामोश गवाही से ही खुदा की ताजीम होती रहे। तुम चलती फिरती बाइबल बन जाओ। तुम क्या बन जाओ? चलती फिरती बाइबल बन जाओ। तुम इधर आओ, उधर जाओ, हर जगह तुम्हारे चलने फिरने से भी खुदा का कलाम जो है वो नजर आना चाहिए। आमीन। अब पहले तो खामोश गवाही की बात की गई है। खामोश गवाही यह है कि आप ऊंची ऊंची कहीं जाके बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कलाम नहीं सुनाते हैं, आप ऊंची ऊंची दुआएं नहीं करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के अखलाक से, किरदार से, अपने रवैये से, अपने बोलचाल से दरअसल खुदा का कलाम सुना रहे होते हैं। आमीन। अब ये तो थी खामोश गवाही। अब दूसरा हिस्सा कहता है कि तुम क्या हो? दुनिया के नूर हो। तुम क्या हो? दुनिया के नूर हो। काम यहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि बस खामोश गवाही देते रहे, चुप चुप के बाद साबित होता रहे मसीह, लेकिन कभी किसी के साथ गवाही शेयर ना करें, कभी किसी के साथ जिंदगी के तजुर्बात शेयर ना करें, कभी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात ना करें, कभी कलाम के बारे में बात ना करें। सो याद रखें, खामोश गवाही हमारी जिंदगी का एक पहलू है, लेकिन यह मुकम्मल मसीही जिंदगी नहीं है। मुकम्मल मसीही जिंदगी के लिए खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने जायका तो देना है, अपने किरदार से तुमने लोगों को मुतासर तो करना है, तुम्हारी तासीर लोगों तक पहुंचे। लेकिन इसके बाद क्या करना है? जब लोग मुतासर हों, जब आपसे पूछें तो आपने शर्मानी नहीं, बस दसांगे बात असी कौन। ऐसी बात ये वक्त होगा कि जब आपने क्या बनना है? लोगों के लिए नूर बनना है। क्या बनना है?
नूर बनना है और मसीह के गवाह बनना है। लोग पूछेंगे कि आप इस तरह के हैं, क्या वजह है? अब वक्त है कि जो कहा गया है कि तुमने उसके क्या बनना है? गवाह बनना है। और अब गवाह बनते हुए हमने उसकी रोशनी और उसकी जो लाइट है और जो नूर हमारे अंदर है, हमने इसे लोगों तक पहुंचाना है। आमीन। सो नमक का मतलब यह है कि आपने खामोश गवाही देनी है, लेकिन नूर बनने का मतलब है कि आपने मसीह के गवाह बनना है। आमीन। बहुत सिंपल, बहुत सादा इसकी तशरीह है। नमक का क्या मतलब है? खामोश गवाही, कैरेक्टर, किरदार के जरिए आपने लोगों को मुतासर करना है। और नूर बनने का क्या मतलब है? कि हमने उसकी गवाही देनी है, गवाह बनना है उसके। आमीन। सो यहां खास जो दूसरे पहलू में हमें जिस बात पे जोर दिया गया है वो ये है कि हमने मसीह की जो बशारत है, इंजील है, उसको लोगों के साथ शेयर करना है, बताना है, ताकि लोग मसीह के कलाम को सुनकर बरकत पाएं, तब्दील हों, जिंदगियां बदलें। अब मैंने पहले भी एक दफा एक एग्जाम्पल, एक मिसाल दी थी। एक शख्स ने किसी को अपने चर्च में बुलाया कि आप हमारे चर्च में आए, पादरी साहब बड़ा अच्छा कलाम सुनाते हैं। और खुद वो शराब पीता था, नशा करता था, लेकिन वो चाहता था कि गैर मसीही को वो मसीह के पास ले आए, चर्च में ले आए, और चाहता था कि वो भी कलाम सीखे। उसे बड़ा उसने कन्विंस किया। तो उसने सवाल किया कि आप कब से जा रहे हैं चर्च? उसने कहा मैं तो बचपन से जा रहा हूं। और कब से कलाम सुनने? जब से मैं संडे स्कूल से चर्च में आया हूं, कलाम ही सुन रहा हूं। वो हैरान था, कहता है कि आप मुझे उस जगह ले जाना चाहते हैं, आप उस कलाम की बात करते हैं जिस कलाम ने आपकी जिंदगी नहीं बदली। आज तक आप शराब पीते हैं, नशा करते हैं, हर बुराई आप में है, और आप ये चाहते हैं कि मैं चर्च जाकर तब्दील हो जाऊं। जो कलाम, जो चर्च और जो प्रस्तिश आपको नहीं बदल सकी है, वो मुझे कैसे बदल सकती है? इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तुमने जमीन के क्या होना है? नमक। तुम जमीन के क्या हो? नमक हो। और उसके बाद पहले कैरेक्टर पे काम करें, अपने किरदार पे काम करें, अपनी जुबान पे काम करें, अपने रवैये पे काम करें, अपनी जिंदगी पे काम करें। पहले मैं ठीक हो जाऊं। पहले क्या हो जाऊं? मैं ठीक हो जाऊं। जब मैं ठीक हो गया तो इसका मतलब है कि मैं दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर सकता हूं। आमीन। अगर मैं ठीक हो गया, मैं तब्दील हो गया, मैं बदल गया, तो मैं बहुत सारे लोगों को भी लीड करने के या खुदा के पास लाने का एक वसीला बन सकता हूं। इसलिए इंग्लिश जुबान में एक सेइंग है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, के जो हमारे काम है ये हमारे लफ्जों से ऊंचा बोलते हैं। हमारे काम जो हैं, हमारा किरदार, हमारे रवैये जो हैं, इससे पहले कि हम इंजील ऊंची ऊंची सुनाएं और हमारे रवैये दुरुस्त ना हो, तो इन रवैयों की वजह से हमारे जो लफ्ज हैं वो दब जाएंगे, उनका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि पहले रवैये दुरुस्त करें, पहले जिंदगी पे काम करें, पहले अपनी शख्सी जिंदगी को तब्दील करें, इसके जरिए लोगों को मुतासर करें। जब हमारी जिंदगी ठीक होगी तो हम बहुत सारे लोगों को मसीह की जमात में ला सकते हैं। आमीन। बहुत सारे लोगों को चर्च का हिस्सा बना सकते हैं, अबदियत का हिस्सा बना सकते हैं, हमेशा की जिंदगी के वारिस बना सकते हैं। अब जो यहां कहा गया है कि तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो। अब इसकी एक और जो ग्रामेटिकली पोजीशन है नूर की, वो ये है कि तुम खुद नूर नहीं हो। तुम खुद नूर नहीं हो, बल्कि तुम किसी की वजह से रोशनी बने हो। तुम्हारा रोशनी, नूर, लाइट का सोर्स कोई और है और आगे चमकते तुम हो। आमीन।
اس کا سورس کوئی اور ہے اور چمکتے تم ہو. آمین. جیسے چاند کیا دیتا ہے؟ روشنی دیتا ہے. چاند کیا دیتا ہے؟ روشنی دیتا ہے. لیکن چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے. وہ کہاں سے لیتا ہے؟ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کو آفتاب کہہ کر ملاکی نبی کے صحیفے میں پکارا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ آفتاب، سورج کہہ کر. کیونکہ یہ جو روشنی میرے اندر یا آپ کے اندر ہے یہ ہماری نہیں ہے. اس کا سورس میں نہیں ہوں. اس کا سورس کوئی میری کوالٹی نہیں ہے, میری اور کوئی اچھی چیز نہیں ہے, میری محنت, میری ایفرٹ نہیں ہے. میرے نور ہونے, میرے روشن ہونے یا میرے منور ہونے کا جو سورس ہے یا جو ذریعہ ہے یا جو چینل ہے وہ کون ہے؟ سورج ہے. وہ کون ہے؟ سورج ہے, آفتاب ہے. آمین. پریز گاڈ. اس لیے کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح کو, جیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ میں کیا ہوں؟ دنیا کا نور ہوں. میں کیا ہوں؟ دنیا کا نور ہوں. پھر اور خدا کے کلام میں اگر آپ زبور کی کتاب دیکھیں 119واں زبور اور 105ویں جو آیت ہے, اس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. آمین. سو یہ روشنی میری یا آپ کی خود سے نہیں ہے. اس کا سورس ہم نہیں ہیں, بلکہ اس کا سورس خداوند یسوع مسیح ہے. کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے اور اس کا کلام ہے. اب جس دن خداوند یسوع مسیح نے واشگاف الفاظ میں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں کہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں, اس دن یہودی روشنیوں کی ایک عید منا رہے تھے. کیا منا رہے تھے؟ عید منا رہے تھے. اس دن یہ 7 مختلف, کچھ لوگ 8 کہتے ہیں, چراغ جلایا کرتے تھے اور ان کو روشن کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ ہے دنیا کا نور. اس دن خداوند یسوع مسیح نے ان کے مابین کھڑے ہو کر کہا کہ یہ نہیں, دنیا کا نور تو میں ہوں. ہاللیلویا. دنیا کا نور کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اب کلام مقدس کے مطابق جو نور کا بنیادی کام ہے, مقدس لوکا پہلے باب کی 77ویں آیت میں بیان کرتے ہیں کہ نور کا جو بنیادی کام ہے وہ گاسپل شیئر کرنا ہے, انجیل کی منادی کرنا ہے. خداوند یسوع مسیح اگر نور ہیں تو ان کا بنیادی کام کیا تھا؟ منادی کرنا. خداوند یسوع مسیح نے ایک میریکل کیا, پھر وہ مقدس پطرس رسول کی جو سانس ہے اس کو بھی انہوں نے شفا دی, وہیں پر رہے, اور بہت بڑی بھیڑ میں لوگ آ گئے اس کے پیچھے. خداوند یسوع مسیح اس سے پہلے تڑکے وہاں سے نکل چکے تھے. خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اسے ڈھونڈا, تلاش کیا. وہ خداوند بہت بڑی بھیڑ آ گئی ہے, وہ بہت خوش ہوئے ہوں گے, لو جی کام بن گیا, اتنی بڑی بھیڑ آ گئی ہے. وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, دائیں بائیں جا رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہو خداوند بہت سارے لوگ تجھے ڈھونڈ رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح تڑکے اٹھ کر دعا کرنے گئے تھے تنہائی میں. وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا مجھے پتا ہے یہ لوگ شفا پانے کے لیے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن میں کس کام کے لیے آیا ہوں؟ منادی کرنے کے لیے. کس کام کے لیے آیا ہوں؟ منادی کرنے کے لیے. ایک جو خداوند یسوع مسیح کی پوزیشن ہمیں بہت بڑی دکھائی دیتی ہے ان کی خدمت میں, وہ ان کا منادی کرنا ہے, وہ ان کا پریچ کرنا ہے, گاسپل سنانا ہے, خوشخبری سنانا ہے, لوگوں کو انجیل سنانا ہے. سو نور کا, روشنی کا سب سے بڑا کام جو ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ خدا کے کلام کی طرف راغب ہوں. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح بھی بذات خود یہ کام کیا کرتے تھے. آمین. خدا کے کلام کی منادی اتنا ضروری کام تھا, شاگردوں نے بھی
जब यीशु मसीह ने अपना नूर उनमें मुनक्स किया, उनको दिया, और वो भी यीशु मसीह के इस नूर को लेकर, रोशनी को लेकर दुनिया में चमकने लगे और उनकी गवाहियां और उनकी शख्सी जिंदगी, कैरेक्टर, किरदार लोगों को मुतासर करने लगे, तो उसके बाद वो खुदा के कलाम को प्रीच करना शुरू हो गए, मुनादी करना शुरू हो गए। और मुनादी करते हुए उन्होंने अपनी जानों तक का नजराना पेश कर दिया। आमीन। छुपते नहीं फिरे हैं और डरते नहीं रहे हैं, बल्कि कलाम सुनाते सुनाते अपनी जानें कुर्बान कर दी। आमीन। अच्छा, मैं पर्सनली इस बात पे गौर कर रहा था कि आज ये काम जिस तरह शागिर्दों ने किया है, आज उस मामले में बहुत सुस्त है ये काम। आज सिर्फ चंद पादरी साहबान खुदा के कलाम की मुनादी पे लगे हुए हैं, लेकिन एक आम जो बिलीवर है उनमें से बहुत कम लोग करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं उन तमाम लोगों को जो बतौर ईमानदार, बतौर डिसाइपल भी खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है, लेकिन मुताद्दद लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है ये हमारा काम नहीं है, ये पादरी साहबान का काम है, ये फलां का काम है, ये कौन सा हमारा काम है। लेकिन याद रखें कि इब्तदाई कलीसिया में हर एक ईमानदार का ये काम था कि वो जाकर मसीह के कलाम की मुनादी करें। अब रूमी दौर में चूंकि खुदावंद यीशु मसीह जब इन्हें छोड़कर गए हैं, तो रूमी दौर में इन मसीहियों को, रूमी जो थे अपने घरों में आम जो मसीही थे उनको जॉब के लिए नहीं रखते थे। पता क्यों नहीं रखते थे? वो डरते थे कि ये कहीं हमें भी मसीही ना कर लें। आमीन। ये कहीं हमें भी मसीही, क्योंकि ये जहां जहां जाते हैं वहां ही लोगों को क्या कर लेते हैं? मसीही बना देते हैं। डरते इनको जॉब्स नहीं देते थे, अपने घरों में मुलाजमत नहीं देते थे कि कहीं इनकी जिंदगियों की वजह से हमारे खानदान तब्दील ना हो जाएं। सो याद रखें, इसमें से जो मैं बयान कर रहा हूं, जो मैंने चीज नोट की है इन शागिर्दों के अंदर और आज बहुत सारे उन लोगों के अंदर जो इंजील की मुनादी नहीं कर रहे, फर्क ये है इनका मतमाए नजर जो था या इनकी निगाहों का जो मरकज था वो दरअसल आसमानी बादशाही थी। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर दुनियावी माल बनाने और दुनियावी बहुत सारी चीजों का फिक्र, तरद्दुद और दुनियावी तौर पे बहुत कुछ हासिल करने के पीछे पड़े हुए हैं। मैं समझता हूं बुनियादी वजह यह है कि हमारी निगाहें आसमानी चीजों की तरफ नहीं है, बल्कि जमीनी चीजों पर लगी हुई हैं, माल बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन इनमें क्या फर्क है? इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया है? अपना माल बेचकर शागिर्दों को दिया है, अपना माल बेचकर कलीसिया की खिदमत की है, चर्च की खिदमत की है। इनके माल की वजह से, रुपए पैसे की वजह से खिदमत का काम बढ़ा है, खिदमत के काम में वुसअत, तरक्की, अफजूनी आई है। सो ये लोग दुनियावी लालच से मुबर्रा होकर मसीह का काम कर रहे थे। आमीन, आमीन। और यही बुनियादी फर्क जो मुझे दिखाई देता है। आज इंजील की बशारत का काम बहुत सारे मसीहियों से कोसों दूर है, क्योंकि हम अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पहले बयान किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं उन सब लोगों को जो मसीह की बादशाही की वुसअत के लिए अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे उनकी इस्लाह के लिए खुदा का कलाम है कि हम अपना पैसा, अपने सोर्सेस, अपना वक्त, अपने टैलेंट्स मसीह की बादशाहत की वुसअत के लिए दें। आमीन। ताकि हमारी निगाहें जो हैं वो जमीनी चीजों पर नहीं बल्कि आसमानी चीजों। क्या बना लेंगे माल? मैंने कई लोगों को देखा है माल, इतना इतना माल बना के अपने बच्चों के लिए प्लॉट्स बना गए, इतने घर बना गए। जब वो मर गए, इस जहाने फानी से कूच कर गए, चले गए, चूंकि उनके बच्चों
को जो लेगेसी में मिली है वो दुनियावी मीरास मिली है। उन्होंने अपने बच्चों को रूहानी मीरास नहीं दी है, उन्होंने अपने बच्चों को कलाम नहीं दिया। बच्चों ने क्या किया, साल 2 साल बाद सारी जायदाद बेच दी, सब कुछ मकान बने बनाए बेच दिए, घर बने बनाए प्लॉट बेच दिए। क्या फायदा? अगर कोई इंसान अपने बच्चों की या अपने खानदान की लेगेसी में उसे रूहानियत ना देकर जाए। दुनियावी माल अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करना जरूरी है या आसमानी बादशाही? क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? आसमानी बादशाही। इसलिए मैं शख्सी तौर पर और हम खानदानी तौर पर इस बात के लिए बहुत सारे लोगों को गवाही देते हैं, हम कोई अपने बच्चों के लिए जमीन पर माल नहीं जमा करे। नो बैंक बैलेंस, नो प्लॉट, नो घर, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर आपने उनकी दुरुस्त तरबियत कर दी तो वो प्लॉट भी खरीद लेंगे, वो घर भी खरीद लेंगे, वो सब कुछ ही ले लेंगे। लेकिन अगर आपने उनकी दुरुस्त तरबियत ना की तो आप जो मर्जी बनाते जाएं, माल इकट्ठा करते जाएं, कुछ भी कर लें, आप उनका कुछ भी फायदा नहीं कर रहे हैं। आमीन। सो इसलिए अच्छा है अगर आपके पास बचाने के लिए, देने के लिए अपने बच्चों को है तो ये भी दें, लेकिन इसके साथ जो उत्तम बात है वो क्या है कि उनको मसीही किरदार दें, मसीही कैरेक्टर दें, मसीही गवाही दें। ये लेगेसी है जो अपने बच्चों को हमने देनी है, ताकि उनकी निगाहें जमीनी माल पर नहीं, पैसे पर नहीं, प्लॉट्स पर नहीं, घरों पर नहीं और मुख्तलिफ चीजों पर नहीं, बल्कि कहां लगी रहे? आसमान की बादशाही पर। आमीन। अपने खानदान की निगाहें, अपनी निगाहें आप आसमान की बादशाही पर लगा लें, खुदा आपके लिए सारे दरवाजे खोल देगा। आपको खबर भी नहीं होगी कि क्या क्या काम जलाली खुदा आपके लिए करेगा, अगर हम अपनी निगाहें कहां लगा लें? आसमानी बादशाही की तरफ। हैरानी की बात है कि बहुत सारे माँ बाप जो हैं ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, और मैं कई दफा ये ख्याल करता हूं कि कुछ लोगों पर जो इस तरह का नहीं करते, बादशाही के लिए बीज ये कर्ज है। उन्होंने ना अपने माँ बाप को देखा, ये कर्ज जो है ये माँ बाप से चली आ रही है, और ये कर्ज आज तक बहुत सारी जिंदगियों, घरानों में मौजूद है। माँ बाप ने नहीं दिया या वो अपनी जिंदगी में नहीं देते थे, आज उनके बच्चे नहीं दे रहे, आज वो नहीं दे रहे, अगली नस्ल भी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये कर्ज जो है, कलाम बयान करता है कि लानत जो है, कर्ज जो है, ये नस्ल दर नस्ल चलती है। इसी तरह से बरकत जो है ये भी नस्ल दर नस्ल चलती है। ये देना भी क्या है? एक बरकत है, ये ब्लेसिंग है कि आप देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्ज के नीचे नहीं हैं, आप कर्ज के अंडर नहीं हैं। अगर आप नहीं देते तो कर्ज है, मां बाप ने नहीं दिया, वो कर्ज आज नौजवानों पर है, वो कर्ज अगली नस्ल पर जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। अगर बरकत ट्रांसफर होती है तो कर्ज और लानत भी ट्रांसफर होती है। सो इसलिए खानदानों को, जिंदगियों, घरानों को इस कर्ज, इस लानत के बंधन को तोड़ना चाहिए, इन तमाम बैरियर्स को ब्रेक करना चाहिए कि अगर उन्हें ये लेगेसी में नहीं मिली, ये चीज मीरास में नहीं मिली, उनके माँ बाप ने उन्हें नहीं सिखाया, तो आज सीख लें। आज उन्हें खुदा का कलाम ये तरबियत देता है कि वो बादशाही के लिए, खुदा के काम के लिए अपने आप को पेश करें, जैसे शागिर्दों ने, इब्तदाई कलीसिया ने अपने आप को पेश किया है, अपना सब कुछ बेचकर, अपने प्लॉट्स, अपनी जायदादें बेचकर। खुदा के कलाम में बयान है, खुदा का कलाम रहनुमाई करता है कि शागिर्द इनमें से बेशतर ऐसे थे जिनके पास एक ही खेत था, जिनके पास एक ही खेत था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया? एक ही खेत का बेचकर क्या कर दिया खुदावंद को? क्या उन्हें जमीन पे फिक्र नहीं थी अपने बच्चों की? क्या उन्हें फिक्र नहीं थी माल बनाने की? या उन्हें फिक्र नहीं थी कि कल क्या होगा, बिल कहां से देंगे, फलां क्या करेंगे, ये क्या करेंगे? क्योंकि उनकी निगाहें किस पर लगी थी? आसमानी बाप पर लगी थी। हालेलुया। आसमानी बादशाही पर लगी थी। तो इसलिए मैं इस बात के लिए इनकरेज करता हूं कि नमक बनना काफी नहीं है कि हम दबे दबे सिर्फ छुपे छुपे मसीह बने रहें। नहीं, हमने खुलकर मसीह की मुनादी करनी है, हमने सामने आकर मसीह की मुनादी करनी है, वाशगाफ अल्फाज में मसीह की मुनादी करनी है और तालीम देनी है। कब देनी है? पहले क्या बनना है?
नमक बनने से पहले गवाही देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत थप्पड़ पड़ेंगे। क्या होगा बताएं, क्या होगा? थप्पड़ पड़ेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी नहीं ठीक होगी, हम लोगों को इंजील सुना रहे होंगे। वो क्या कहेंगे? पहले अपने आप को ठीक करो। गॉस्पल देने से पहले, इंजील सुनाने से पहले नमक बनने की जरूरत है। जब तक कोई नमक की मानिंद नहीं या नमक जैसा नहीं, तो इसका मतलब है कि वो नूर भी नहीं बन सकता है। नूर तब बनेंगे जब हम नमक जैसे होंगे। पहले गवाही मजबूत हो, कैरेक्टर्स ठीक हो, किरदार ठीक हो, पहले हमारी जिंदगी ईमानदार हो, दियानतदार हो, फिर हम नूर भी बनेंगे। और नूर बनने के लिए, जैसे मैं बयान कर रहा हूं कि अगर हमारी निगाहें आसमानी बादशाही पर हैं, तो फिर हम किसी चीज से भी दरेग नहीं करेंगे। आमीन। बहुत सारे लोगों ने कमिट किया कि हम खुदावंद को दायकी दिया करेंगे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ बैठे या ऑनलाइन जो सुन रहे हैं या बाद में जो इस पैगाम को सुनेंगे, बहुत सारे लोगों ने कमिट किया कि हम खुदा की हुजूरी में हर माह या जब भी हमारी इनकम आती है हम दायकी देंगे। लेकिन वो एक दफा दी, दो दफा दी, फिर छोड़ दिया। ये दुरुस्त बात नहीं। कलाम मुकद्दस की तरफ आए, क्या खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। वाइज की किताब, पुराने अहदनामे में वाइज की किताब, इसका 5वां बाब, पहली 7 आयात, क्या लिखा है? जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के ज़बीहे गुजरानने से बेहतर है। इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। यानी चर्च या खुदा की हुजूरी में शिनवा होने के लिए, सुनने के लिए, ताबे होने के लिए आना अहमकों के ज़बीहे गुजरान या उनकी कुर्बानियां गुजरानने से ये चीज बेहतर है। बोलने में जल्दबाजी ना कर और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ न कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर। इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों, क्योंकि काम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है और अहमद की आवाज बातों की कसरत होती है। 4 आयत में लिखा है, जब तू खुदा के लिए मन्नत माने, जब तू क्या करे? खुदा के लिए मन्नत माने, तो उसके अदा करने में देर न कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं। तू अपनी मन्नत को क्या कर? पूरा कर। 5वीं आयत में लिखा है, तेरा मन्नत न मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। बेहतर क्या है? कि तू मन्नत ना माने। लेकिन अगर तूने मन्नत मानी है, तूने एक दफा इरादा किया कि मैं खुदा की हुजूरी में दायकी दूंगा, हदिया दूंगा, नजराना कुछ भी दूंगा, तो उसके लिए खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। आगे 6 आयत में लिखा है, तेरा मुंह तेरे जिस्म को, क्या लिखा है? तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनहगार न बनाए। तेरा मुंह से मुराद है कि जो तूने मुंह से निकाला है, जो बात तूने मुंह से कही है, तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनहगार न बनाए। और फरिश्ते के हुजूर मत कह कि भूल चूक थी, खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे। क्यों बर्बादी है? क्यों तेरे हाथों की कमाई में कोई तहफ्फुज नहीं है, या किसी तरह से ये जरा पैसा जो है ये महफूज नहीं रहता? इसलिए कि तेरा मुंह जो है इसने तुझे गुनहगार बना दिया है। तेरे मुंह ने क्या किया है? तुझे गुनहगार बना दिया है। जितने लोगों ने खुदा के साथ कमिट किया है कि वो अपनी दायकियां देंगे और देते रहे हैं, उन सब के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। खुदा का कलाम है कि वो सब अपना पैसा, अपने सोर्सेस, अपने टैलेंट्स, अपनी काबिलियतें खुदा की बादशाहत की वुसअत पे लगा दें। आमीन। खुदा ने बनी इस्राइल को दुनिया में नूर बनाया था। क्या बनाया था?
نور بنایا تھا، اور تھے بھی وہ دعویٰ بھی یہ کرتے تھے کہ ہم نور ہیں. جس دن خداوند یسوع مسیح نے کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ دنیا کا نور، اس سے پہلے وہی کہتے تھے کہ دنیا کے نور ہم ہیں، دنیا کے نور ہم ہیں. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، دنیا کا نور میں ہوں. دعویٰ وہ ٹھیک کرتے تھے، وہ غلط نہیں کرتے تھے کہ دنیا کے نور تو ہم ہیں. خدا نے واقعی انہیں دنیا کے نور بنایا تھا، لیکن ان کی روشنی لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی. ان کی وجہ سے خدا کے کام میں وسعت نہیں آ رہی تھی. خدا چاہتا تھا کہ یہ دنیا میں رہ کر نور کی مانند چمکے اور لوگ اٹریکٹ ہو کر میری طرف راغب ہوں، لیکن وہ تو دنیا کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. یہودی مرد 3 دعائیں اٹھ کر صبح صبح کرتے تھے. کیا دعائیں کرتے تھے؟ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غیر قوم نہیں بنایا. خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے غلام نہیں بنایا. خدایا تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے عورت. مطلب وہ غیر قوموں سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ وہ شکر کرتے تھے کہ ہم غیر قوم، جبکہ خدا نے انہیں غیر قوموں کے لیے روشنی بننے کے لیے کہا. جب وہ ناکام ہو گئے، اس کے بعد خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ نور بن کر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. 14ویں آیت کا جو مکمل حصہ ہے وہ یہ ہے، تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے. جو شہر کہاں بسا ہے؟ پہاڑ پر بسا ہے، وہ چھپ نہیں سکتا. یہاں چونکہ پہاڑی ایریا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح موجود تھے، اور اس وقت گاؤں دیہات جو قصبے شہر ہیں یہ عام طور پہ چوٹیوں پر ہی بنائے جاتے تھے، اور جو پہاڑ کی سب سے اونچی سطح ہے لوگ پسند کرتے تھے وہاں پر اپنے گھر بنانے. اور وہاں پر ہر گھر میں رات کے وقت، ہر گھر، کوئی گھر اس سے خالی، ہر گھر میں روشنی یا دیے جلائے جاتے تھے. لیمپس جلائے، یہ لیمپس تو کہہ لیں کہ ماڈرن نام ہے، اس وقت دیے، تیل کے ساتھ دیے جلائے جاتے تھے، یا کہہ لیں کہ جو لالٹین ہے، اس ٹائپ سے لوگ روشنی کیا کرتے تھے. اور روشنی کر کے اندر نہیں رکھتے تھے، روشنی کر کے تو ایک چبوترے پر رکھتے تھے. اس چبوترے پر اس لیے رکھتے تھے تاکہ جب لوگ دور دراز سے یہاں پہاڑی علاقے میں سفر کرتے ہیں تو انہیں روشنی نظر آ سکے کہ فلاں جگہ پہ گاؤں موجود ہے، شہر موجود ہے، یا لوگ موجود ہیں، تاکہ ڈر خوف سے لوگ محفوظ رہ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس روشنی کو دیکھ کر اپنی منزل تک آرام سے پہنچ سکیں، پیسفلی جس جگہ انہوں نے جانا ہے وہ وہاں پر ایکسیس یا ریچ کر سکیں. سو اس اعتبار سے یہ لیمپس یا روشنی یا دیے یا لالٹین جو ہے یہ باہر چبوترے پر رکھی جاتی تھی. گھر والوں کو بھی روشنی ہے اور باہر والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ روشنی ہے. اس لیے کلام میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم کیا ہو دنیا کے، اور تمہیں کہاں پہ رکھا گیا ہے؟ اونچی جگہ رکھا گیا ہے. اور یہ پریولیج، یہ آنر ہے کہ تمہیں اونچی جگہ رکھا گیا ہے. کس لیے رکھا گیا ہے؟ تاکہ تمہاری روشنی سے لوگ درست منزل تک پہنچ سکیں، لوگوں کی منزل کوتاہ نہ ہو سکے، لوگ اپنی منزل سے ہٹ نہ جائیں، یا وہ بھول نہ جائیں، یا وہ کسی غلط راہ نہ چلے جائیں. تمہیں اس لیے رکھا گیا تاکہ تم لوگوں کو درست راہ تک لے جاؤ. اور درست راہ کون سی ہے؟ کیا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 14ویں باب کی 6 آیت میں یسوع مسیح نے بیان کیا ہے کہ راہ، حق اور زندگی. سو راہ کون سی ہے؟ یسوع مسیح ہے. ہمیں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم لیمپ کا کام کریں، روشنی کا کام کریں، نور کا کام کریں، تاکہ اس روشنی کے وسیلے سے لوگ اپنی منزل، اور منزل کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا. منزل کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے چمکیں. اب 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں جلدی اس کو ختم کروں گا. 15ویں آیت میں لکھا ہے، چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ کہاں رکھتے ہیں؟ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. 16ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح جیسے یہ روشنی ہے، اسی
तरह, इसी मानिंद, इसी तरीके से जैसे ये लैंप दूसरों के लिए रोशनी का बायस है, इसी तरह कलाम में क्या लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, आदमियों के सामने चमके। अब ये रोशनी क्या है, इसकी तशरीह खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कर दी है। क्या है? तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को, रोशनी का मतलब क्या है? नेक काम। क्या मतलब है? नेक काम। ये है नमक। नमक कहा गया है कैरेक्टर, किरदार। फिर जब तुम्हारा कैरेक्टर, किरदार, तुम्हारे काम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे मसीह को। इससे रोशनी मुनक्स होगी, इससे रोशनी जो है वो दूसरों को अट्रैक्ट करेगी। फिर लोग तुम्हारी तरफ आएंगे और तुमने उनको दुरुस्त मंजिल तक पहुंचा देना है। दुरुस्त मंजिल कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। आसमान की बादशाही है। इसलिए कलाम में लिखा है ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उसकी क्या करें? तमजीद करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। हमारे कामों को देखकर। तो सोचें, मेरे आपके काम क्या ऐसे हैं कि लोग हमें देखकर खुदा बाप की तमजीद करते हैं? क्या हमारे रवैयों को देखकर क्रॉस कई बड़ी लंबी लंबी लटका देते हैं, अपने गलों में भी और पता नहीं कहां कहां रखते हैं? तो क्रॉस से तो कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किरदार, क्रॉस क्या है? हमारा किरदार। अगर क्रॉस लटकाई है, किरदार दुरुस्त नहीं है, तो उस क्रॉस लटकाने की बल्कि इंसल्ट है, बेइज्जती है। शराब पी रहे हैं, क्रॉस पहनी हुई है, और बड़े गलत काम किए जाते हैं। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे किरदार से मसीह नजर आए, हमारे किरदार से मसीह नजर आए, और लोग हमारे नेक कामों को देखकर कहां आ जाएं? खुदा के पास आ जाएं, उसे कबूल करें, उसकी तमजीद करें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे।